जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Jai Hind Defence Aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Trishul Defence Academy. अब FCAT एग्जाम को सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं एंड आई होप आप लोग ने प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ आप इन कोर्स का नोट्स बना रहे होंगे और उसका डेली रिवीजन कर रहे होंगे ताकि FCAT एग्जामिनेशन में 200 प्लस स्कोर किया जा सके। दिस इज स्मृति द्विवेदी एंड वी विल बी स्टडिंग जनरल स्टडीज for the FCAT examination. So today we will be studying about the mountains of India. But before we move forward, let's discuss the answers of the yesterday's question. So yesterday I asked that about the COP26 summit, which was held where? In Glasgow, Scotland, and it was hosted by Scotland, UK in partnership with Italy. So who was the president of COP26 summit? So COP26 summit, it was an UN's climate change conference and it was presided by Alok Sharma. So the answer will be Alok Sharma. Now, also the next question I asked about the important Padma Vibhushan and Padma Bhushan awardees. So important Padma Vibhushan awardees this year were General Bipin Rawat. He was our CDS, Chief of Defence Staff, and he died unfortunately in a helicopter crash on 8 December 2021 in Kunnur, Tamil Nadu. And Padma Vibhushan was also given to Shri Kalyan Singh, who was a leader, and it was given him for public affairs. Now, Padma Bhushan awardees include Sri Buddhadev Bhattacharya. Why he is in news? Because he was the former Chief Minister of Bengal, and he is in news because it is said that he refused to accept the Padma Bhushan award. Along with that, Satya Nadella, Sundar Pichai, they are the CEOs of Microsoft and Google respectively, and government has honored them with Padma Bhushan. Along with that, Devendra Jhajaria was also given Padma Bhushan. Now, who is Devendra Jhajaria? Devendra Jhajaria is a two-time old Paralympics gold medalist, and he is also a javelin thrower. He won gold medal in the 2020 Tokyo Paralympics as well. Now the next important Padma Bhushan awardee was Cyrus Poonawalla. Who is he? He is the chairman and MD of SII. What is SII? Serum Institute of India. As we know that India manufactured a lot of vaccine, COVID-19 vaccine, and it wasn't very much expected from us, but we did achieve to we 150 crore vaccination doses, and mainly the vaccines was administered and manufactured by Serum Institute of India. So Cyrus Poonawalla, he is the chairman and MD of Serum Institute of India. Now, I also asked about PVSM awardees. So what is PVSM first? PVSM, it stands for Param Visist Seva Medal, and it is given. It is a military award which is given for exceptional service. So it was given to Lieutenant General Madhuri Kanitkar. Who is she? She is the head of medical division, and she under her Operation Kozit was launched during the second wave of the COVID-19 in April 2021, and we were able to manage the shortage of oxygen and other medical equipments. Other than that, it was also awarded to the golden boy Neeraj Chopra, who won gold medal for India in javelin throw in Tokyo Olympics. Now today we will study about the mountains of India. This is an important topic about, and we will not only be studying about mountains and mountain ranges, we will also be studying about the highest peaks in the ranges, and also we'll discuss some extra things and facts about the mountains. So as we know, India is surrounded by Himalayas in the northern side, and we also have Western Ghats and Eastern Ghats at the coastal lines, and along with that we also have few mountain ranges in the plateau and as well as the desert region. So we will be discussing them one by one.
So this is the physical map of India, and if we look, we'll find out that here Karakoram, Jaskar, Pir Panjal ranges are there. Apart from that, Greater Himalayan ranges are these ranges. Then in the Dafla Hills, Mishmi Hills, Garo Khasi Jaintia Hills, these are the ranges of Himalayas. Apart from that, we have Aravalli Hills here in the Rajasthan region, desert region. In Bundelkhand, Vindhyan Range, Satpura Range, Chota Nagpur Plateau, and then we have Northern Sircar, that is the Eastern Ghats, and as well as the Western Ghats at the Malabar coast. So the Himalayan mountain, the most important mountain ranges which acts as a savior and the guard to the northern borders of India, the Himalayas. So how they were formed? They were formed as the result of collision between Indian plate and Eurasian plates. And these are tectonic plates, and because of their collision, the Himalayan mountains were formed. They are structurally fold mountains, like the plates they overlapped and the fold was generated. And they are the Himalayan mountains. They are very young. ये काफी young mountains हैं. And how they run? They run in a west to east direction from Indus to Brahmaputra. Indus river is in the west and Brahmaputra is in the east. And their width, it is 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal. So if we look at it, the width decreases as we grow from Kashmir to Arunachal. Now Himalayas, they consist of three parallel ranges in its longitudinal extent, and there are lots of valleys that lie between these ranges. What are valleys? Valleys are the space between two mountain ranges, the low space. So like this. This is a valley. So the Himalayas, they consist of three parallel ranges: Greater or Inner Himalayas or Himadri, the Leisure or Himachal Himalayas, and the Shivaliks. We will be studying about them one by one now. So this is, if we look here, it is the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas, Karakoram Range, Ladakh Range, Jaskar Range, and then we have the Great Himalayas, Middle Himalayas, and then the Shivaliks here. The Greater or Inner Himalayas. The northern, they are the northernmost range, and they are known as Himadri. And it is the most continuous range, and all the uh, peaks, the high ranging peaks, 6,000 meters, say above, with the average height of 6,000 meters. All these peaks, they lie in Greater Himalayas, and this core part of this Himalayas is composed of granite. These Himalayas, there are perennially snowbound, and glaciers like Baltoro and Siachen glaciers, they descend from this range only. They are also sourced to lots of rivers, as we know, Indus, Brahmaputra. So it is the most continuous range consisting of the loftiest peak. Now the leisure of Mount Everest, which is the highest point of the world with height 8848 meter, it is also in the Greater Himalayas. Now the leisure or the Himachal Himalayas. So the range, they lie south of the Himadri forms, and they are the most rugged mountain system, and they are known as Himachal or Leisure Himalayas. Now the ranges, they are mainly composed of highly compressed and altered rocks, and their altitude, it varies between 3700 meter to 4500 meters, and the average width is 50 kilometers. Now the Pir Panjal ranges, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are the prominent ones. And इसी में लेशर और हिमाचल हिमालयाज में ही वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, they lie. We will be discussing about these mountains in detail. Now the outer Himalayas or Shivaliks. They are the outermost range of the Himalayas, and they are called the Shivaliks, and they extend over a width of 10.5 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. Now these ranges, they are mostly consisting of unconsolidated sediment that is brought down by the rivers from the main Himalayan ranges.
there are lots of rivers that drain their sediments in this part, and these valleys, they are covered with thick gravel and alluvium, and the longitudinal valleys lying between Lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. So the important one is Dehradun, Kotli Dune. They lie between Lesser Himalayas and Shivaliks. Now, if we look into more greater division, longitudinal division of the Himalayas, there are Kashmir or northwestern Himalayas, Himachal and Uttaranchal Himalayas, Darjeeling and Sikkim Himalayas, Arunachal Himalayas, and eastern hills and mountains. So, Kashmir or northwestern Himalayas. So, what are the ranges here? Karakoram, Ladakh, Jaskar, and Pir Panjal ranges. So, Ladakh, it is in the northeast of Kashmir Himalayas. It is a cold desert, and it lies between Greater Himalayas and the Karakoram ranges. Now, Valley of Kashmir, as we discussed earlier, it lies between Great Himalayas and the Pir Panjal ranges. And the important glaciers, as they are perennially snowbound. Perennially snowbound का मतलब साल भर बर्फ रहती है इन पे. So these are Baltoro glaciers and Siachen glaciers. Siachen conflict, India, Siachen, it is the highest battlefield of the world, and 1984 में, May 1984 to be precise, में इंडिया ने वहाँ पे अपना वो कर लिया था, and it is the war was fought between Pakistan and India for this place, and we all know the contribution of honorary Captain Bana Singh, who was given Paramveer Chakra for the Siachen conflict. So the Kashmir Himalayas, they are also famous for karevas. What are kareva formations now? So kareva formations, they are thick deposits of glacial clay which are useful for cultivation of saffron. Saffron is a local variety of saffron. So कश्मीर में saffron को क्या बोलते हैं? केसर. So कश्मीर is famous for केसर, and वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे करेवा फॉर्मेशंस, जो कि ग्लेशियल क्ले जो एक टाइप की होती है, उसके डिपॉजिट्स होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जाफरान के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है कल्टीवेट करने के लिए. अब इसमें पासेस क्या होते हैं? पासेस आर दी वेज टू क्रॉस माउंटेन्स. गैप्स होते हैं दो माउंटेन्स के बीच में, जिनके थ्रू हम क्रॉस कर सकते हैं उन माउंटेन्स को. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पासेस? दे आर जोजिला, जो कि ग्रेट हिमालयाज पे है, बनिहाल ऑन द पंजाल, पोटुला ऑन द जस्कार, एंड खरदुंगला ऑन द लद्दाख रेंज. अब यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं, जैसे कि डल, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डल एंड वुलर लेक्स, and saltwater lakes such as Pangong So and Moriri are present. After that, river Indus and its tributaries such as Jhelum, Chenab, they flow through the region. And what are the important peaks? K2, which is known as Godwin Austen, it is in POK, and Nanga Parbat. Now Nanga Parbat वो point होता है जहाँ पे Himalayas, these ranges, they take a turn, and now from here they are known as Suleiman ranges of Pakistan. This is the point. Or like the Jaskar ranges are there, and from here they are take turn, and in Pakistan they are known as Suleiman ranges. So if we look at the Himalayas, Kashmir Himalayas, Karakoram ranges, these are Ladakh ranges, and these are the Jaskar ranges. And after that, these are Pir Panjal ranges. Pir Panjal ranges में ही त्रिकूट hills है, and where the famous Hindu shrine of Vaishno Devi is located. Moving forward, the Himachal and Uttaranchal Himalayas. Now, where they lie? They lie between the river Ravi in the west and Kali. Kali क्या है? घाघरा की tributary है. और घाघरा किसकी tributary है? घाघरा is a tributary to Ganga river. We have read this in the previous parts. So they lie between the Ravi in the west and Kali in the east. And this region is drained by two major river systems of India, that is the Indus and the Ganga river system. Now the northernmost part of the Himachal Himalayas is an extension of the Ladakh cold desert, which lies in the Spiti subdivision of district Lahore and Spiti.
स्पीति वैली जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होती है हिमाचल हिमालयाज का, और वो किसका एक्सटेंशन है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का। अब इस सेक्शन में हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज में जो तीनों रेंजेस हैं हिमालयाज की, लाइक द इनर हिमालयाज, द हिमाचल हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, वो तीनों ही प्रेजेंस हैं। जो लेसर हिमालयाज हैं या इनर हिमालयाज, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? धौलाधार रेंजेस हिमाचल में, और उत्तरांचल में क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा। गाइस प्लीज अंडरलाइन दिस पार्ट, ये कई बार पूछ लेते हैं कि धौलाधार रेंजेस कौन से हिमालयाज का पार्ट है। सो दे आर फ्रॉम लेजर हिमालयाज, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, या नाग टिब्बा। सो नाग टिब्बा जो है और उत्तरांचल में इसको बोलते हैं, ये भी लेजर हिमालयाज का पार्ट है। अब ये रीजन जो है ना, ये हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है। धर्मशाला, मसूरी, शिमला, सीनिक ब्यूटी के साथ साथ काफी प्लेजेंट वेदर, कसौनी, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन एंड रानीखेत। और यहाँ पे कैंटोनमेंट टाउन्स, ब्रिटिशर्स ने यहाँ की मतलब वेदर और वहाँ का एरिया और लोकेशंस को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन एज वेल एज कैंटोनमेंट टाउन्स स्टेब्लिश किए थे। अब यहाँ पे एक और चीज है फेमस, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, विच वी विल कवर इन द नेशनल पार्क सेक्शन। सो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। अब यहाँ पे पिलग्रिमेज के भी काफी प्लेसेस हैं, यहाँ रिवर सिस्टम्स निकल रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज गंगोत्री, जहाँ से गंगा रिवर हमारी निकलती है, यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ and Hemkund Sahib. Hemkund Sahib is a Gurudwara and is a famous pilgrimage place for Sikh. It is also situated in this part. And this region is also known to have 5 famous Prayags. We have read about the Prayags in the river video. I hope you guys retain this and tell me in the comment section what are the 5 famous Prayags in this region. And also tell with which rivers they are forming, the all 5 Prayags along with the rivers merging at there. So now the next is the Darjeeling and the Sikkim Himalayas. So the Darjeeling and the Sikkim Himalayas, they are flanked by Nepal Himalayas in the west and Bhutan Himalayas in the east. So दार्जिलिंग और सिक्किम में जो हिमालयाज हैं, दे आर रिलेटिवली स्मॉल बट अ मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ही कंचनजंगा पीक जो है, जो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट पीक है, वो यहीं पे है। इट इज नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज तीस्ता। नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, विल नो द आंसर्स टुमारो कि तीस्ता कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वी हैव अगेन कवर्ड दिस पार्ट इन द प्रीवियस रिवर वीडियो. It is a region of high mountain peaks like Kanchenjunga and deep valleys. यहाँ पे एक ट्राइब्स भी रहती हैं, लेप्चा ट्राइब्स. सो देयर विल बी अ क्वेश्चन, देयर माइट बी अ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि लेप्चा ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करती हैं. तो दे बिलोंग फ्रॉम दी दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. सिक्किम ऑप्शन में होने से आप उसको टेक कर सकते हैं. Then the British taking advantage of the physical conditions such as moderate slope, यहाँ पे slope बहुत steep नहीं है, moderate है, and thick soil cover with high organic content, और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होती है थ्रू आउट द ईयर. विल नो द रीजन. एंड माइल्ड विंटर्स. दे इंट्रोड्यूस्ड टी प्लांटेशंस. दार्जिलिंग टी प्लांटेशंस आर फेमस एंड एज वेल एज द दार्जिलिंग टी इज वेरी फेमस. सो it was introduced by Britishers in this region. So these are the if we know, look at this, these are the Kashmir Himalayas, Karakoram, Ladakh, Jaskar. Then the Himachal and Uttarachal Himalayas, जहाँ पे जस्कार रेंजेस भी हैं, और उसके बाद यहाँ पे लद्दाख रेंजेस भी हैं, और शिवालिक्स के भी रेंजेस हैं. एंड देन यहाँ पे सिक्किम एंड नेपाल हिमालयाज जो है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, जिधर यहाँ पे फ्लैंक्ड है, मतलब डिवाइडेड है. तो यहाँ पे ये नेपाल हिमालयाज हैं जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, एंड इधर भूटान हिमालय. तो सिक्किम हिमालयाज हैं यहाँ पे. Now we'll study about Arunachal Himalayas or Eastern Himalayas. So Arunachal Himalayas, they extend from the east of the Bhutan Himalayas up to the Difu Pass. Difu Pass है ईस्ट में, ये वहां तक भूटान हिमालयास से डिफू पास तक जाते हैं. और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, गाइस प्लीज कीप नोटिंग डाउन दी नेम्स ऑफ द पीक्स, इम्पोर्टेंट पीक्स वी आर डिस्कसिंग. तो अरुणाचल हिमालयास के कौन से इम्पोर्टेंट पीक्स हैं? कांगटू एंड Namcha Parwa. And these ranges, they are dissected by fast flowing rivers from the
नॉर्थ टू साउथ। ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसी में है। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कमेंग, सुबनसिरी, दिहांग एंड दी लोहित। दिहांग एंड लोहित और सुबनसिरी ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की tributaries हैं. Now Brahmaputra it flows through a deep gorge after crossing नामचा बारवा. नामचा बारवा is the point जहाँ से इंडिया में ब्रह्मपुत्र एंटर करती है. और यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? अगेन ट्राइब्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, कई बार आ जाता है ये ट्राइब्स कौन से रीजन की हैं. तो जो अरुणाचल हिमालय अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं वो है मोनपा, डाफला, अबोर, मिशमी, निशी एंड दी नागाज. दी नागा ट्राइब्स नागालैंड में भी हैं और अरुणाचल हिमालय भी उस रीजन तक है. नाउ दी ईस्टर्न हिल्स एंड दी माउंटेन्स जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल. तो देयर जनरल अलाइनमेंट इज नॉर्थ टू साउथ. जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो वेस्ट टू ईस्ट था हिमालय का अलाइनमेंट ऐसे ऐसे. पर अरुणाचल हिमालय के बाद जो ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स है उनका अलाइनमेंट ऐसे है अलॉन्ग दी बॉर्डर. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया हिल्स. विल स्टडी अबाउट देम इन दी मैप. सो दे आर ऑल्सो नोन एज पटकई बम. अब ये काफी हिल्स के नाम है, प्लीज नोट इट डाउन. पटकई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड इन द साउथ एज बीजो एंड लोशाई हिल्स. They flow. Now Barak, it is a tributary of Brahmaputra. It flows through the region. This. Now यहाँ पे एक बहुत ही important lake है, लोकटक लेक. और वो क्यों फेमस है मणिपुर में? Because of the floating islands known as Fumris. So this is again an important question. Fumris कौन है? तो Fumris are the floating islands और ये कौन से लेक में पाई जाती है? लोकटक लेक में. और लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में. उसके अलावा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, वो यही लोकटक लेक में ही है. इट इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली इन एफकेट. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? सो इट इज द वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन लोकटक लेक. नाउ यहाँ पे रिवर कौन सी है? चिंडविन रिवर, जो कि इरावड्डी रिवर की ट्रिब्यूटरी है. इरावड्डी म्यांमार की रिवर है और ये यहाँ से फ्लो करती है. फिर इसमें गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं और उनकी वजह से कहा जाता है मेघालय में रेनफॉल होती रहती है. बिकॉज जो मानसून विंड्स आती हैं साउथ ईस्ट मानसून की, वो इससे स्ट्राइक होके इन पहाड़ों से सारे क्लाउड्स की बारिश यहीं से कर देती हैं. और इसी की वजह से यहाँ पे चेरापूंजी, मौसिनराम, जो कि वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है, 1280 सेंटीमीटर ईयर की रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा वो यहीं पे होती है. पर ये रीजन में उतना ही मतलब ये रेनफॉल टिक नहीं पाती है बिकॉज यहाँ पे वो इरोजन हो जाता है, स्लोप ऐसा है कि पानी बह जाता है. पर सब इट्स द वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी एंड मौसिनराम. So this is the Loktak Lake with Fumris. Here, these are the floating islands. Now I have a question for you guys. Tell me the name of a species that Kebul Lamjao National Park, the world's only floating national park, is home to. Tell the answers in comment and we will see the answer in the next session. So now we are done with the Eastern Himalayas and now we will study about the hills of peninsular India. So as we saw that the Himalayas, they are divided into variety of hills and we studied the division. Now we will see the important part, that is the hills of peninsular India. Here we will be covering about the Vindhyan ranges, about the ranges in the mid of India and as well as western and eastern Ghats. So first we will talk about Aravalli Hills. Now Aravalli Hills, they originate in Gujarat. Where do they originate? At Palanpur and extend it till Haryana. Now I like you guys to answer one question, which is the easternmost point of the Aravalli Hills. Which hills? And वहाँ पे एक बहुत ही important historical building जो कि power के according भी Indian Constitution for everything, इंडिया के लिए बहुत ही एक important building है, उस टिप पे बनी हुई है. So I would like you guys to answer कि वो कौन सी बिल्डिंग की बात कर रही है जो अरावली हिल्स के एकदम ईस्टर्न टिप पे जहाँ पे वो एंड होते हैं वहाँ पे है. Now these are the oldest mountains ranges. They are old fold mountain ranges and they are the oldest mountain ranges. और यहाँ का जो अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? वो है माउंट गुरु शिखर. गाइस प्लीज नोट दिस डाउन. अरावली रेंजेस का
हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट गुरु शिखर। माउंट आबू जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, वो भी यहाँ पे है, अरावली हिल्स का ही पार्ट है। अब इस रीजन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि दे कंटेन द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट्स। दैट इज़ वाई राजस्थान की मार्बल माइंस के लिए फेमस है, और राजस्थान के जो मार्बल्स होते हैं वो इंडिया भर में लोग यूज़ करते हैं। इट इज कंटेन्स द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे लेक कौन कौन से हैं? एक तो लेक सांभर लेक है, and it is the largest inland saline water body in India. So अगर क्वेश्चन आता है what is the largest inland saline water body in India, so that will be Lake Sambhar, then Lake Devar and Lake Jai Samant. Now the next important range is विंध्यन रेंज। जैसे कि अरावली रेंजेस टेक्टोनिक थे, हिमालयाज भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से थे। विंध्यन रेंज जो है ये नॉन टेक्टोनिक माउंटेन्स हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? विंध्या है भरूच गुजरात से सासाराम इन बिहार। नाउ दे आर यंग रेंजेस एज कम्पेयर टू अरावलीज एंड सतपुरा हिल्स। सतपुरा हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इसका विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है गाइस? माउंटेन रेंजेस और उनके हाईएस्ट पीक प्लीज रिमेंबर। तो इसका क्या है? सद्भावना शिखर, ऑल्सो नोन एज गुडविल पीक। ये विंध्यन रेंजेस का हाईएस्ट पीक है। अब ये क्यों फेमस है? दे है डायमंड डिपॉजिट्स। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डायमंड की जो माइंस हैं वो विंध्यन रेंजेस में ही है। पन्ना जो है वो रीजन भी विंध्यन रेंज में ही आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे है ये अरावली रेंजेस हैं। यहाँ तक हरियाणा राजस्थान में शुरू हो रही है, यहाँ माउंट आबू है और ये यहाँ तक जा रही है, आगे तक भी जाती है। एंड नाउ यू गाइज विल आंसर द क्वेश्चन दैट कौन सा अरावली हिल के कौन से रेंजेस हैं जिनके एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। उसको मतलब उस बिल्डिंग का एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, उन्हीं हिल्स के नाम पे है। I guess you guys have got the answer by now, so please write the answer in the comment section. Now these are the Vindhyan range और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? सद्भावना शिखर, जिसको बोलते हैं गुडविल पीक। फिर इसके साउथ में सतपुरा रेंजेस, फिर यहाँ पे इसके ईस्ट में है महादेव, साउथ ईस्ट में। एंड यहाँ पे माइकाल रेंजेस है जहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ से ही एक रिवर निकलती है माइकाल रेंजेस में। तो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन सी रिवर है जो यहाँ से निकलती है। वी हैव अगेन कवर्ड दैट पार्ट इन दी रिवर सेक्शन। सतपुरा रेंजेस का हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सा है? धूपगढ़। एंड महादेव में पंचमढ़ी हिल्स जो है ये हाईएस्ट पीक है। So Satpura ranges. Now they are the combination of Satpura, Mahadev and Maikal hills. Satpura के थोड़ा साउथ ईस्ट में महादेव रेंजेस है एंड देन माइकाल हिल्स है। तो इसमें धूपगढ़ी जो है, धूपगढ़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस। और महादेव रेंजेस का हाईएस्ट कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इज। और माइकाला हिल्स का कौन सा हाईएस्ट पीक है? दैट इज द अमरकंटक। सो आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट कि अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है। सो दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे क्या किस मिनरल के डिपॉजिट्स हैं? द डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट्स। मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्कैट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे कीप आस्किंग कि कौन सा मिनरल इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन मिनरल्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक्स। अब यहाँ पे एक फेमस वाटरफॉल्स है ये नर्मदा रिवर पे, और इस वाटरफॉल्स का क्या नाम है? धुआंधार वाटरफॉल्स। अभी हम नाउ वी विल कवर दी वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। इनको कहा जाता है वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दे सपोर्ट। एंड दे ऑल्सो हैव द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनका नेचुरल ब्यूटी, मिनरल कंटेंट, सब कुछ के लिए ही ये बहुत ही एक रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ वी विल लर्न अबाउट दी वेस्टर्न घाट माउंटेन और ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इनमें से कौन कौन से रेंजेस हैं और उनमें कौन कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं। गाइज रेंजेस और उनके पीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो उसका एक बार आप हो सके तो एक टेबल बना लीजिएगा
और उस पे रेंजेस के नाम और उनके इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक्स का नाम लिख के प्लीज मेमोराइज इस, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है. So Western Ghats, they are mountain ranges running parallel along the western coast of India, starting from Gujarat and ending in Tamil Nadu. Now they cover the states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. Now Western Ghats, they are origin of various peninsular rivers. Tell me in comment section. We have covered this part in the river section कि कौन कौन सी rivers यहाँ से निकलती हैं. So they are one of the 8 hottest hotspot of biological diversity in the world, and they are also a natural UNESCO World Heritage Sites. Now Western Ghats, they are older than Himalayas, and they इनका important feature और ये they influence Indian monsoon weather patterns by intercepting the rain-laden monsoon winds that sweep in from the southwest during late summer. अब इनको बोला किस नाम से जाता है? They are known as Sahyadri in Maharashtra, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu और अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला. तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सह्याद्री रेंजेस कहाँ पे हैं या किस नाम से बोलते हैं. तो सह्याद्री इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स इन केरला. दिस इज द वेस्टर्न घाट. दे कवर द पार्ट ऑफ गुजरात. गुजरात से शुरू होते हैं केरला तमिलनाडु में आके एंड हो जाते हैं. दे मर्ज विद ईस्टर्न घाट्स. This is they are so Gujarat, Maharashtra. They also cover part of Goa, then Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. So इसमें 3 सेक्शन है वेस्टर्न घाट के. नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, मिडिल सह्याद्री एंड सदर्न वेस्टर्न घाट. अब नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी वैली जो कि गुजरात से है टू लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा, and it is made up of horizontal sheets of Deccan lavas. basaltic lava cover है इनका. So now इसका important सबसे highest peak कौन सा है? ये है कलसूबाई peak. So note it down, कालासुबाई peak. So ये northern western घाट का highest point है. and अगर पूरे ही western घाट्स का देखेंगे तो वो अनाईमुडी peak है. and इसमें important passes कौन कौन से हैं? थाल घाट एंड भोर घाट that provide passes by road and rail between the Konkan plains. Konkan railway भी एक heritage है, काफी one of the best rail routes to travel है guys. I suggest once in your lifetime please travel through that route. वो बहुत ही beautiful है. It stretches all through forests, tunnels, mountains, and you'll get to see a lot of natural beauty on Konkan rail route. So यहाँ पे जो important passes कौन कौन से थे? थाल घाट एंड भोर घाट, जिससे कोंकण रेलवेज जाते हैं. सो द नॉर्दर्न जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यहाँ गुजरात से यहाँ तक, तापी वैली है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है. उसके बाद आते हैं मिडिल सह्याद्रीज, जिनको सेंट्रल वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं. ये गोवा से नीलगिरी हिल्स तक जाते हैं और इनमें क्या है, ग्रेनाइट से है ये हिल्स. जैसे वो वाला बसाल्टिक लावा कवर से था, ये जो है डेक्कन लावा से था, ये पार्ट जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है. अब इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वबुल माला, कुद्रीमुख एंड पशपगिरी पीक्स जो है ये इसके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं. और यहाँ पे नीलगिरी हिल्स विच जॉइन द सह्याद्रीज नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. नीलगिरी हिल्स अचानक से यहाँ पे, अभी तक ये लो लाइंग होते हैं, पर नीलगिरी हिल्स काफी ऊंचे हो जाते हैं, 2000 से ऊपर की हाइट पे चले जाते हैं. और यहीं पे नीलगिरी हिल्स में ही वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मर्ज हो जाते हैं इन तमिलनाडु. सो इसका हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा. वेस्टर्न घाट्स का डोडा बेटा हिल्स जो है वो 2637 है, और मकरूती, दे आर इम्पॉर्टेंट पीक्स. अब इसमें सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स का एक और हाईएस्ट पॉइंट है जो है मुलनगिरी में बाबा बुडन हिल्स. बाबा बुडन हिल्स एक और चीज के लिए फेमस है. टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि बाबा बुडन हिल्स किसके लिए फेमस है. एंड इसको ब्रह्मगिरी हिल्स भी बोलते हैं. एंड यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, गरसोप्पा यानी जोग फॉल्स जो इंडिया के फेमस वाटरफॉल्स हैं. और कौन सी रिवर्स पे है? शारावती रिवर. अब इसके दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, मालनाड जो कि हाईलैंड्स होते हैं, एंड मैदान जो कि प्लेट्यू होते हैं. अब यहाँ से ही रिवर कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स से, बाबा बुडन हिल्स जो है. और कौन से लेक से निकलती है? ताल कावेरी लेक. गाइस प्लीज नोट डाउन दीज डिटेल्स कि कावेरी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी लेक से, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स में है.
डोडा बेटा पीक जो है वो यहाँ का पॉइंट है हाईएस्ट। सो दीज आर द नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे पालघाट है, विल नो मोर अबाउट पालघाट अभी। और यहाँ पे अनाईमुडी रेंज है। अब सदर्न वेस्टर्न घाट आते हैं। सो सदर्न वेस्टर्न घाट्स जो है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं, नीलगिरीज, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। और इसके साथ ही एक ट्रांसवर्स रेंज भी जाती है, पलानी हिल्स। अब पालघाट जो गैप है वो कौन सा गैप है? इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड मेन सह्याद्री। सो जो वेस्टर्न घाट के मैप में यहाँ तक ये सह्याद्री मेन रेंजेस है और उसके बाद यहाँ पे सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं, जाके नीलगिरीज, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स हैं। तो यहाँ पे एक गैप है, उसको पालघाट गैप बोलते हैं। अब इसमें एवरेज एलिवेशन 1600 से 2500 है। और जो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरीज का हाईएस्ट पीक है। और अन्नामुडी पीक जो है ये पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पे? अन्नामलाई। सो वी कैन से वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अन्नामुडी। बट अगर हम नीलगिरीज का हाईएस्ट पॉइंट पूछेंगे तो वो डोडा बेटा है, क्योंकि अन्नामुडी कहाँ पे? अन्नामलाई में। और अगस्ती मलाई कौन सा है? वो हाईएस्ट पीक है कार्डमम हिल्स का। गाइस ये रेंजेस और उनके इंपॉर्टेंट पीक्स एक बार गो थ्रू द वीडियो वंस मोर एंड नोट डाउन, मेक अ टेबल ऑफ द रेंजेस एंड द हाईएस्ट पीक। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी सेशन में। Now we'll learn about the one more important range of Indian mountains, that is Eastern Ghats. अब जैसे कि वेस्टर्न घाट्स थे वो वेस्ट कोस्ट से रेंज करते थे, ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्ट कोस्ट की तरफ है। एंड दे आर चेन ऑफ हाईली ब्रोकन। वेस्टर्न घाट्स जैसे ये कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि ये ब्रोकन है। बीच में गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में तो ये गायब भी हो जाते हैं, इतने ब्रोकन है। सो ये शुरू कहाँ से होते हैं? जैसे वेस्टर्न घाट्स तापी से शुरू होते थे, ईस्टर्न घाट शुरू होते हैं महानदी इन ओडिशा टू वगाई इन तमिलनाडु। अब इनके क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? महेंद्रगिरी। सो माल्या रेंज दे हैव जनरल एलिवेशन ऑफ 900 to 1200 मीटर एंड महेंद्रगिरी इज द टॉलेस्ट पीक। इसके बाद एक्चुअली सॉरी गाइस, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ माल्या रेंज। जिंदागढ़ा पीक जो है 1690 मीटर, ये ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। द मडुगुला कोंडा रेंज दे आर हायर एलिवेशंस। यहाँ पे जिंदगढ़ा पीक, तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या होगा? जिंदगढ़ा पीक इन अराकू वैली, आर्माकोंडा, गलीकोंडा एंड शिंकुरम गुट्टा आर इम्पोर्टेंट पीक्स। फिर ईस्टर्न घाट जैसे मैंने कहा था कि वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में गायब हो जाते हैं, तो फिर से वो रीअपेयर करते हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? इन द कंटिन्यूअस हिल रेंजेस इन कडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कौन से नाम से जाने जाते हैं? नल्लामलाई रेंज। इसके ऊपर ये वाली रेंज को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार। नाउ द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड पालकोटना रेंज। सो गाइज फिर उसके बाद साउथ, जैसे ये नॉर्दर्न सिरकार रीजन है और यहाँ पे पालकोटना रेंजेस हैं, फिर कडप्पा और यहाँ पे अगेन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में दे रीअपियर। फिर उसके बाद फर्दर डाउन साउथ में दिस लो लाइंग जवाडी हिल्स एंड दी शेवरॉय कल्याण हिल्स हैं। और फिर ये यहाँ पे आके ईस्टर्न घाट्स नीलगिरी में वेस्टर्न घाट्स के साथ मिल जाते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हिल है बिलगिरी रंगन हिल्स, कर्नाटका में है, जो कि कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे है। सो दे अटेन एट द हाइट ऑफ 1279 मीटर्स। सो ये ईस्टर्न घाट के कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स थे। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज प्लीज़ उसको एक बार फिर से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, स्पेशली माउंटेन रेंजेस, उनके पीक्स और उनमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए फेमस हैं, जैसे कि अरावली हिल्स मार्बल डिपॉजिट्स के लिए फेमस हैं और सतपुरा रेंजेस, विंध्यन रेंजेस में डायमंड है। तो ऐसे इन सारे फैक्ट्स को आप एक स्पेशल अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि माउंटेन्स और मिनरल्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वेस्टर्न घाट से भी आते हैं क्वेश्चंस, वहाँ पे थाल घाट, बोर घाट जो पासेस थे, या फिर जो पालघाट गैप और नीलगिरी हिल्स, उनके हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं सारी रेंजेस के। उसको प्लीज़ एक बार आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसको एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना, बिकॉज इस सेशन में से पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। So guys, please keep studying, keep revising and keep making your short notes, and I hope you all score 200 plus in the upcoming FCAT examination. Please like, share and subscribe this video and subscribe the channel of
Trishul Defense Academy. Keep learning, keep working hard, and all the best. Jai Hind. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।